السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GTV نیوز اور میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں ساجد حسن۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں، فرحت شہزادی اور فرح گوگی کو فیصل آباد اکنامک زون میں 10 ایکڑ انڈسٹریل پلاٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے الزام کی تحقیقات میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ اینٹی کرپشن کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے انکوائری اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی کو بھجوانے کی سفارش کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وقار شوکت سے۔ وقار، آگاہ کیجیے گا تحقیقات کے حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بالکل، فرحت شہزادی عرف فرح گوگی کو فیصل آباد اکنامک زون میں جو ہے وہ 10 ایکڑ انڈسٹریل پلاٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی تحقیقات میں نیا موڑ آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے جو ہے انکوائری اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی کو بھجوانے کی سفارش کر دی ہے۔ اینٹی کرپشن کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی جو ہے وہ فائنل رپورٹ کے مطابق فرح گوگی کی طرف سے سرکاری خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اراضی خریداری میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، تو اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی محکمانہ طور پر جو ہے چھان بین کر رہی ہے۔ تحقیقاتی جو ہے وہ ٹیم کی سفارش بھی سامنے آئی ہے، جبکہ تفتیشی ٹیم کے مطابق جو ہے وہ فیڈ مک کے جو ہے CO اور سیکٹری سمیت کسی سرکاری افسر کی جو ہے وہ مجرمانہ غفلت ثابت نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اینٹی کرپشن نے فرح گوگی اور ان کی والدہ کی کمپنی المیز ڈیری کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر انڈسٹریل پلاٹ الاٹ کرنے پر مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا وقار شوکت۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ضمنی انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت تحریک انصاف کی مقبولیت سے بوکھلا گئی ہے۔ PDM کو ضمنی انتخابات میں شکست واضح نظر آ رہی تھی۔ ملک میں تمام مسائل کا حل فوری عام انتخابات ہیں۔ حکومت انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ PTI کے رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس پاکستان کے دورے پر ہیں۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ دنیا اس وقت مختلف مالیاتی مسائل میں ہے۔ پاکستان میں آنے والا تباہ کن سیلاب کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی غیر معمولی اور شدید قدرتی آفت ہے، جس کو دور کرنے کے لیے دنیا کو پاکستان کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ بکھرا ہوا پانی طاقت سے دیہات، معاش، مویشی، فصلیں، املاک سب بہا کر لے گیا ہے۔ تباہ کاریوں پر مزید مالی تعاون کے لیے بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیلاب کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا ہے۔ سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بچوں اور خواتین سمیت 1300 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کا پھیلاؤ بڑا چیلنج ہے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی مدد درکار ہے۔ Of my country's landmass is underwater. 1 in 7 people, 33 to 35 million people have been devastated by what you've called a monsoon on steroids. Our people, their lives have lost their lives, their livelihoods are facing the very real threat of hunger, disease, and further devastation. Today, your actions, your love, your support to us in this incredibly difficult time. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لاپتہ افراد کو اہل خانہ سے ملانے کی یقین دہانی کرا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت میں وزیر اعظم شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جبری گمشدگی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے عدالت کو بتایا کہ لاپتہ افراد کمیٹی 6 اجلاس کر چکی ہے۔ کمیٹی کے ہر اجلاس کی نگرانی کروں گا اور عدالت میں رپورٹ پیش کروں گا۔ رپورٹ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقائق پر مبنی ہوگی۔ میں اس چھوٹے بچے سے ملا جو کہتا رہا وزیر اعظم میرے ابو کو ملا دو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاپتہ افراد کے کیسز کو حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو لاپتہ افراد کے کیسز پر اقدامات کے لیے 2 ماہ کا وقت دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے معاملے پر حکومت کی کوششیں جاری ہیں۔ لاپتہ افراد کو ان کے اہل خانہ سے ملانا ایک قومی خدمت ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس معاملے پر جس طرح زور دیا ہے، اس سے کسی نہ کسی حد تک ان لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اس سے زیادہ اہم، اس سے زیادہ انسان کی خدمت کسی
और जगह नहीं हो सकती कि आप लोगों को उनके अजीज़ों से, उनके प्यारों से जो मिसिंग पर्सन बन चुके हैं, जिन्हें गायब कर दिया गया है, उसे बुलाएं। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो यदि उन्होंने केस में ऑब्जर्वेशन आज दी है, इससे पहले उन्होंने जिस तरह से इस मामले को जो है वो इस मामले पर जोर दिया है, उससे किसी न किसी हद तक जो है वो लोगों को रिलीफ भी मिला। इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट्स हुई हैं उससे भी किसी हद तक जो है वो रिलीफ मिला है। एलपीजी की किल्लत और कीमतों को कंट्रोल करने के मामले पर ओगरा ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज को एलपीजी बाजर्स की नकलो हरकत में आसानी फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। मजीद बात करेंगे, हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे स्वालेह अब्बासी से। स्वालेह, ओगरा की दरख्वास्त में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, बिल्कुल ये मामला है एलपीजी की किल्लत और कीमतों के कंट्रोल के हवाले से। तो ओगरा की जानिब से तमाम जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको एलपीजी बाउजर्स की नकलो हरकत में आसानी काम करने की दरख्वास्त कर दी गई है। ओगरा की जानिब से कहा गया है कि सिंध और सूबा बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को कंट्रोल करके ये सहूलत मुहैया की जा सकती है। मजीद कहा गया कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने की वजह से एलपीजी बाउजर्स को मंजिल यानी जो सप्लाई जहां पर उनको पहुंचाना है, जो सप्लाई पॉइंट्स हैं वहां पर पहुंचाने में आसानी होगी। मजीद कहा गया कि ये तरीका इस्तेमाल करके शुमाली इलाकाजात में एलपीजी की किल्लत पर भी काबू पाया जा सकेगा। इसके अलावा ओगरा की जानिब से कहा गया है कि एलपीजी की किल्लत की वजह से एलपीजी फरोख्त कुनंदगान जो हैं उनकी तरफ से ज्यादा मुनाफाखोरी का भी जो है वो ये सबब बन रहा है। बहुत शुक्रिया स्वालेह अपडेट करने के लिए। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। ठट्टा में पहले ही कच्चे के इलाके ज़िराब आ गए थे और अब पीर गोट के मकाम पर जमींदारी बचाव बंद में पड़ने वाले शिगाफ से 15 से ज़ायद देहात डूब गए हैं। दरगाह दातार चिल्लेगाह में सैलाबी पानी लपेट में आ गया है और मुतासरा इलाकों से लोगों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। मज़ीद बताएंगे इसी बारे में पन्नू महेश्वरी। जी पन्नू महेश्वरी, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, जिला ठट्ठा पे दरियाए सिंध का कच्चा जो मुकम्मल ज़ेरे आप आ चुका है। सैकड़ों खानदान जो नकल मकानी करके बचाव बंदों पर पनाह ले ली है। मुतासरीन बेयारो मददगार बैठे हुए, जबकि ज़िले इंतजामिया और हुकूमत सिंध उन मुतासरीन को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। मैं ये भी बताता चलूँ कि पीर गोट के मकाम पर जमींदारी बचाव बंद में पड़ने वाला शकाब में मजीद 15 गाँव ज़ेरे आप आ चुके हैं, जबकि दरगाह दातार चल्ले का जो मकाम है वो भी जो इस वक्त पानी की लपेट में आ चुका है। जी बहुत शुक्रिया आपका पन्नू महेश्वरी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध में सैलाब से मुतासर होने वाले 5 लाख से ज़ायद अफराद सरकारी फ्लड रिलीफ कैंप्स में मौजूद है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन का कहना था कि खैरपुर और नौशेर फिरोज में सैलाबी पानी खड़ा है। दोनों अजला से पानी निकालने के लिए कोशिशें जारी है। मंचर झील से पानी तेजी से दरिया में जा रहा है। मंचर झील का पानी समंदर में जाने से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो खैरपुर और नौशेर फिरोज में जो पानी खड़ा है उसको अब आगे पंपिंग के जरिए रोहड़ी कैनाल में उसको मूव किया जाएगा। उस पानी को सक्खर से पानी नीचे आया, लेकिन कोटड़ी तो थोड़ा टाइम लग रहा है पानी को नीचे जाने में। तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस समंदर हाई लेवल पे चल रहा है इसलिए वहाँ पे नकासी अब थोड़ी सी स्लो जा रही है। तो उस पर उम्मीद की जा रही है कि जैसे ये पानी मंछर का पानी समंदर में जाता रहेगा उस तरीके से मजीद जो है पानी की सूरत हाल बेहतर होगी। 68,66,501 लोग जो हैं वो टोटल डिस्प्लेस्ड हुए हैं और जो रिलीफ कैंप्स में लोग हैं, जो गवर्नमेंट रिलीफ कैंप्स हैं, वो हैं 5,97,535 वो रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। शादू में सैलाब मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। मुंतखब नुमाइंदों के घरों का घेराव करना शुरू कर दिया। सैलाब मुतासरीन ने पीपल्स पार्टी के MPA पीर मुजीबुल हक के घर के सामने एहतजाज किया। सैलाब मुतासरीन ने सड़क ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। मुतासरीन कहते हैं कि देहात डूब गए, घर बह गए, भूख और बदहाली का शिकार हैं। अमरीकी महकमा खारजा के कौंसलर डेरेक कोलेट ने बैनुल मज़ाहिब रहनुमाओं और कम्युनिटीज़ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सैलाब मुतासरीन की इमदाद को लायक तहसीन करार दिया। डेरेक कोलेट ने कराची की जामिया इस्लामी मस्जिद क्लिफ्टन में सैलाब मुतासरीन की इमदादी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने तबाहकुन सैलाब में प्यारों को खोने वालों के अहल खाना से ताज़ियत की और मुतासरीन की हिमायत का इयादा भी किया।
डेरेक कोलिट ने जामिया मुफ्ती मदरसे के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर समेत सिविल सोसाइटी की इमदादी काविशों को सराहा। तकरीब से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और जामिया मुफ्ती मदरसे के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने भी खिताब किया। डेरेक कोलिट ने इमदादी कैंप का दौरा भी किया। डेंगू वायरस कराची वालों के लिए दर्द सर बन गया है। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 104 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवा माह में अब तक 622 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। एक चितकबरा मच्छर खौफ की अलामत बन रहा है। डेंगू ने कराची को सबसे ज्यादा मुतासिर कर रखा है। कराची में 24 घंटों के दौरान 104 मरीज ऐसे आ चुके हैं जो डेंगू के मर्ज में मुब्तला है। सितंबर के महीने में अब तक 622 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची का जिला ईस्ट सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां अब तक 45 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अंदरूनी सिंध सैलाब के बायस डेंगू के मच्छर की अफजाइश के खौफनाक हद तक खदशात पाए जाते हैं। अब तक अंदरूनी सिंध से डेंगू के 11 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि लार्वा साफ पानी में पैदा होता है। अंदरूनी सिंध सैलाब की लपेट में होने की वजह से हंगामी इकदाम न किए गए तो इस मर्ज में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। रवामा अंदरूनी सिंध से अब तक 307 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 76 जबकि पंजाब से 106 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान भर में तैनात FIA साइबर क्राइम सर्कल के 243 मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम। कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात ग्रेड 1 से 14 के अफसरान, एहलकार और मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह की अदायगी नहीं हुई। तनख्वाह न मिलने पर साइबर क्राइम जोन, सर्कल, रिपोर्टिंग सेंटर्स की कारकर्दगी मुतासिर होने का खदशा है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद अजगर चौधरी से। जावेद साहब, क्या वजह है, क्यों तनख्वाह अब तक नहीं दी गई? जी, कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात ग्रेड 1 से 14 के अफसरान और मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह की अदायगी नहीं हुई। NRPC प्रोजेक्ट एंट्री के मुलाजिम काफी अफसर कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट पर वक्तन तोसीक की जाती रही है, जबकि मज़कूर मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में आखिरी तोसीक जुलाई के 31 अगस्त तक की गई थी, जबकि सितंबर से कॉन्ट्रैक्ट तोसीक के अहकाम भी एहलकार और मुलाजमीन को ताहाल मौसूल नहीं हुए। जरा का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात एहलकार और मुलाजमीन सब इंस्पेक्टर, ASI, टेक्निकल असिस्टेंट, UDC शामिल है, जबकि हेड कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल डिस्पैचर के अलावा फील्ड नायब कांस्टेबल और स्वीपर्स भी तनख्वाह न मिलने वालों में शामिल है, जिसके बिना पर साइबर क्राइम जोन पाकिस्तान भर में साइबर क्राइम जोन, सर्कल, रिपोर्टिंग सेंटर पर तैनात इन मुलाजमीन के कारकर्दगी मुतासिर होने का खदशा लाहक हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के जुलाई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी गई। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने 3 रुपये 48 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। नेपरा अथॉरिटी ने 31 अगस्त 2022 को FCA पर समाअत की थी। कराची पुलिस स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पा सकी, भत्ताखोरों के हौसले बढ़ गए। बैस कॉलोनी के बड़े ताजिर से 7 करोड़ रुपए भत्ता मांग लिया गया। फोन पर ताजिर को धमकी दी गई है, 2 रोज में भत्ता ना दिया तो जान से मार दिया जाएगा। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा से। अली, ये क्या मामला है, किस ताजिर ने किसने भत्ता मांगा और पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल, ये वाक़या बैस कॉलोनी सुकन थाना है, उधर रिपोर्ट हुआ है, वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें जो ये मिल्क होलसेलर के सदर हैं उनसे 7 करोड़ रुपए का भत्ता जो है वो टेलीफोन के जरिए तलब किया गया। नामालूम शख्स के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्होंने ये बताया कि मुकदमे के मुताबिक कि अगर भत्ता ना दिया गया तो जान से मार दिया जाएगा और साथ ही धमकी दी कि अपने टेंट का बंदोबस्त मौत का कर लो वरना तुम्हें जल्द जो है वो जान से मार दिया जाएगा। ताहम इसके हवाले से जो डीलिंग कैटल फार्म एसोसिएशन के सदर उनका कहना है कि जो इंसाफ है वो अपील की है कि जो IGSN है वो फौरी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाए। बहुत शुक्रिया अली रजा। कराची के जिला वस्ती से टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुल्जिम जावेद लंगड़ा पकड़ा गया। SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान ने GTV को बताया कि मुनज़्ज़म गिरोह ने कराची में 3 अफराद को बाकायदा टारगेट करके कत्ल किया था। जानते इसी बारे में सौलत जाफरी से। जी सौलत। आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें टारगेट किलर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ इस वक्त SSP सेंट्रल मौजूद हैं। सर बताइएगा, टारगेट किलिंग की वारदात थी, उसको जो है वो ट्रेस किया, गिरफ्तार हो गया मुल्ज़िम, मरकजी मुल्ज़िम जो है वो उसके हवाले से बताइएगा किस तरीके से जो है ये मनसूबाबंदी करते थे और कत्ल करते थे। जी बिल्कुल, जैसे आपको बताया कि जावेद उर्फ लंगड़ा जो है एक टारगेट किलर था और इसमें 24 मुकदमात में ये पहले भी बंद हो चुका है, जिसके अंदर कत्ल, इक़दाम कत्ल, राज़नी, डकैती, हर तरह की
सेक्शंस मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये बेसिकली इकरा नामी इनमें एक खातून है जो कि गिरफ़्तार है। ये बेसिकली घर में पहले इकरा को कुछ देर के लिए काम करवाते थे और उसके बाद कुछ जगहों पे इन्होंने चोरियां की हैं और एक जगह इन्होंने डकैती की है, हाउस रॉबरी की है। आप लेकिन उनका यही कहना था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं, उस हवाले से जो है वो 2 मुख्तलिफ थानों में जो है वो ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात भी जो है वो दर्ज किए गए हैं, जबकि टारगेट किलिंग की वारदात का जो मरकज़ी मुलज़िम है उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जी, तालीमी बोर्ड कराची के तहत 10वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। 10वीं जमात साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन अब्दुल रहमान ने हासिल की, रबिया ने दूसरी पोजीशन, जबकि अलीज़े समधानी और रामेन जुबैर ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 80% रहा। खबरें और भी होंगी, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अमरीकी डॉलर के पर कतरे ना जा सके, इंटरबैंक में डॉलर ने रुपए को बड़ा झटका दे दिया। अमरीकी करेंसी की कदर ₹2.76 बढ़ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबार के अख्ताम पर डॉलर $228.18 पर बंद हुआ। पंजाब में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे के हुसूल के लिए खवातीन और मर्द हजरात की लंबी कतारें लगी हुई हैं। रिपोर्ट करेंगे वहीद गुजर। सैलाब के बाद आटा बहरान सर उठाने लगा। ओपन मार्केट में आटा नायाब, फी किलो कीमत ने सेंचुरी पार कर ली। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आटे के ट्रक भी कमी पूरी नहीं कर पा रहे। मैं आटा और घी लेने आया हूँ, पूरा 1 हफ्ता हो गया। सुबह 5 साढ़े 5 बजे आता हूँ। जब मैं काम पे दिहाड़ी पे जाता हूँ, दिहाड़ी भी टूट जाती है, काम करने के लायक नहीं रहा, सिर्फ महंगाई की वजह से। यहाँ जब भी आते हैं लाइनें लगी होती हैं, जब हमारा नंबर आता है आटा घी चीनी कुछ भी नहीं मिलता। ओपन मार्केट में आटा न मिलने पर शहरियों की बड़ी तादाद ने आटे के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया, मगर मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। शादमान यूटिलिटी स्टोर पर रोजाना 100 अफराद के लिए आटा आता है। क्योंकि अमर सिद्धू से हैं, सुबह 6 बजे आके खड़े हुए हैं, काम की छुट्टी की हुई है, इसकी वजह से आटा और घी नहीं मिल रहा। इनको चाहिए कि सुबह रात को मंगा के रखा जाए ताकि सुबह आते साथ हमें आटा मिले, घी मिले। शहरियों का कहना था कि आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए इंतजामिया को तरजीही बुनियादों पर ठोस इकदाम करने होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ वहीद गुजर, GTV न्यूज़ लाहौर। लाहौर में रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मछलियों की जिंदगियों को बयान करती एशिया की बड़ी लाइब्रेरी कायम कर दी गई है। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं समना कमाल। 17,000 किताबों पर मुश्तमिल एशिया की बड़ी लाइब्रेरी में से एक मुनफरिद फिशरीज लाइब्रेरी है। फिश फार्मिंग की शुरुआत कैसे की जाती है, मछली को पानी में अफजाइश, माहौल और इनकी बीमारियों के हवाले से तमाम तर मालूमात इस लाइब्रेरी में दस्तयाब हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे MOU साइन है और उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे स्टडी भी करने आते हैं, अपनी इंटर्नशिप्स के लिए भी आते हैं, अपने रिसर्च के हवाले से भी आते हैं। यहाँ पे जो किताबें हैं उनमें मछलियों की बीमारियाँ, मछलियों की अफजाइश नस्ल, मछलियों की बढ़ोतरी, इंटेंसिव फिश कल्चर, IPRS सिस्टम है, उसके मुतल्लिक तमाम किताबें मौजूद हैं। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की कुतब से इस लाइब्रेरी को आरास्ता किया गया है, जिससे मुहक्किकीन और तालिब इल्मों को मछली के बारे में तमाम मालूमात एक ही छत तले हासिल करने में मदद मिलती है। अगर आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं फ़िश की प्रोडक्शन के हवाले से, चाहे वो फ़िश की फूड के ऊपर हो, न्यूट्रिशन हो, इसकी माइक्रोबायोलॉजी हो या एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ पर आपको हर तरह की बुक यहाँ पे मिल जाएंगी। इंतजामिया ने लाइब्रेरी को मुस्तकबिल में बेहतर बनाने और इन किताबों की तादाद में इजाफे के साथ साथ इन कुतब को डिजिटलाइज करने के अज़म का इजहार भी किया है। अगर कोई फ़िश फार्मिंग और इसके माहौलियाती ख़तरात पर तहकीक करने में दिलचस्पी रखता है तो वो लाहौर में एशिया की बड़ी लाइब्रेरियों में से एक फिशरीज लाइब्रेरी में कौमी और बैनुल अक़वामी मालूमात हासिल कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ समना कमाल, GTV न्यूज़ लाहौर। रैकेट और कारफोर ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख मालियत की मोर्टीन कॉइल्स अतिया करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी फराम करदा अतियात को मुतासरा इलाकों में तकसीम करेगी। रैकेट और कारफोर ने एक तकरीब में इस मुआहदे का आगाज़ किया। सैलाब के मौजूदा बहरान की रोशनी में मोर्टीन ने डेंगू फैलने के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों को मोर्टीन कॉइल फराम करने के लिए अपने डेंगू अब नहीं मिशन के लिए दोबारा अहद किया है। CEO रैकेट काशान हसन का कहना था कि सैलाब से मुतासरा कम्युनिटीज़ और इलाकों के मोर्टीन कॉइल्स अतिया करने से हम उम्मीद करते हैं कि वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के साथ साथ मज़ीद तबाही को कम किया जाएगा। आज जो पाकिस्तान के हालात हैं
جو تباہی ہوئی ہے ان فلڈز کی وجہ سے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ کارفور کے ساتھ پارٹنر کریں. ہمارے ایک ویلیو کسٹمر ہیں یہ، اور ان کے ساتھ مل کر کے مورٹین کی ڈینگی اب نہیں کیمپین میں ہم لوگ جو ہیں وہ 1 لاکھ کوئلز ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں فلڈ افیکٹیز کے لیے. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ریکٹ پاکستان اور مورٹین بہت ساری مختلف آرگنائزیشنز اور NGOs کے ساتھ مل کے ہم لوگوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈینگی سے، ملیریا سے، ان سب بیماریوں سے جو کہ اب پیدا ہو رہی ہیں اور ہو سکتی ہیں. اور یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا مورٹین کا پرپس ہے، اور یہی ہمارا عزم ہے کہ ڈینگی اب نہیں. ٹاپ سٹی اسلام آباد میں سول انفراسٹرکچر بچھانے کی یادگاری تقریب ہوئی، جس میں ڈائریکٹر ٹاپ سٹی غلام یاسین نے گیس پائپ لائنز اور IT سروسز کے لیے سول انفراسٹرکچر بچھانے کا فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا. ٹاپ سٹی کی تقریب میں چیف آپریٹنگ آفیسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سکندر خان، چیف ایڈمنسٹریٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد علی خان، چیف فائنانس آفیسر عدیل مرزا، اسلام آباد ڈیلرز ایسوسی ایشن کے نمائندے اور الاٹیز بھی موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے CEO بریگیڈیئر ریٹائرڈ سکندر خان نے کہا کہ ٹاپ سٹی وفاقی دارالحکومت میں ایک اہم پیش رفت ہے. انتظامیہ گیس اور IT سروسز کا افتتاح کر کے بے حد خوشی محسوس کر رہی ہے. اس موقع پر ٹاپ سٹی کے ڈائریکٹر غلام یاسین نے کہا کہ اسمارٹ ہاؤسنگ اسکیم میں جدید ترین گولڈ کلب کے ساتھ ساتھ واکنگ ٹریک بھی بنایا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے GTV نیوز.